Okay, my dear friends, I am Dr. Rishi Sharma. Today we will discuss about the market segmentation. Okay, so this is the topic of your unit number 2, marketing management. So we'll continue with this. As you can see, market, some terminology which you have to remember before proceeding further towards this topic. That is market. Market is what? It is set of all actual and potential buyers of the products. जो भी बायर्स हैं अभी हैं या बाद में हो सकते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल, ऑल creates the market. Potential market is what? Is the set of consumers who profess a sufficient level of interest in the market. So as we have mentioned earlier, potential buyers कौन है? Buyers those who are having a set of interest, जिनको कुछ interest है आपके products या offers में. Available market क्या है? A set of consumers who have interest, income and access to a particular market offer. मतलब उनके पास पैसा भी है, उनका इंटरेस्ट भी है और वो एक्सेस भी कर सकते हैं, उस मार्केट तक पहुंच भी सकते हैं. वो क्या कहलाता है? अवेलेबल मार्केट. फॉर एग्जांपल जितने स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी स्टेशनरी कंपनी के लिए क्या हो सकते हैं? अवेलेबल मार्केट हो सकते हैं, क्योंकि उनको क्या है? स्टेशनरी में इंटरेस्ट है, इनका उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं. ओके, सो further moving, target market is a part of available market that company decides to pursue. Okay, so we were talking about the example of a stationery. तो stationery में stationery का market है, उससे related टारगेट मार्केट क्या हो सकता है? एक कंपनी चूज कर सकती है स्टेशनरी में हमें कौन कौन से आइटम्स को बनाना है. सो दैट इज कॉल्ड टारगेट मार्केट. एंड फाइनली व्हाट इज द मार्केट डिमांड? द टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट दैट वुड बी परचेज्ड बाय अ defined customer group in a defined geographical area in a defined time period in a defined marketing environment under a defined marketing program. So this is called the market demand. So what is segmentations? Before going to the segmentation, we'll look at the market in two different ways. First is mass marketing, second is segmented marketing. With the help of segmentation, as you can see in the slides, देख सकते हैं आप, क्या दिख रहा है आपको? Companies divide large heterogeneous market into a smaller segment that can be reached more efficiently and effectively with products and services that match their unique needs. तो कंपनीज क्या करती हैं? एक बड़े मार्केट को डिवाइड कर देती हैं, किसमें? बड़ा और हेट्रोजीनियस मार्केट जो है उसको डिवाइड कर देते हैं एक स्मॉलर मार्केट में. दैट मार्केट can be reached efficiently and effectively with the company's resources, and the unique need of the consumers of that particular market can be satisfied efficiently. So there are two types of market, mass and segment. Companies go for segmentation because they want to satisfy more and more different needs of the customers. So even the products like salt have now segmented. अर्लियर देयर वर ओनली वन काइंड ऑफ सॉल्ट, एक तरह का नमक आता था. आज की डेट में नमक में भी कई टाइप्स आ गए हैं. क्यों आ गए हैं? क्योंकि आप देखते हैं एक पर्टिकुलर डिसीज़ में नमक का खाना बंद कर देते हैं, लो सोडियम सॉल्ट बोलते हैं. तो टाटा और उस जैसी अन्य कंपनियां जो हैं दे कम अप विद अ डिफरेंट सेगमेंट एंड अ प्रोडक्ट विच वर अर्लियर सूटेबल टू द मास मार्केट. तो सेगमेंटेशन क्या है आप देख सकते हैं? डिवीजन ऑफ टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप ऑफ बायर्स. पूरे मार्केट को डिवाइड करना छोटे स्मॉलर मार्केट में, और जो कैसा हो? होमोजीनियस हो. तो सेगमेंट क्या हुआ? इट इज़ अ सेट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स. ये सारे लोग प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर सकते हैं, इन सारे लोगों की सिमिलर नीड्स है. ये सारे लोग रेफ़र करते हैं ईच अदर को व्हेन बाइंग. वो किस चीज़ में एक से हैं? दे आर लाइक इन परसीव वैल्यू, दे आर लाइक दे व्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दे आर लाइक दे परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका सेगमेंट क्या हो सकता है? सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपके ये सारे पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस करे ये एक से हो सकते हैं. एंड यू रेफर ईच अदर टू फॉर बाइंग. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर, market segmentation is subdividing the market into distinct subset of customers where any subset
may conceivably be selected as the target market to be reached with a distinct marketing mix. वही बात कह रहे हैं, पूरे मार्केट को डिवाइड करना किस में, सबसेट ऑफ कस्टमर्स में जिनकी सिमिलर नीड्स होंगी, जिसको आप टारगेट कर सकते हैं विद अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। जैसे मान लीजिए आप कपड़े बनाते हैं, यू आर ए कंपनी विच मेक्स एपरल्स, सो आप बनाएंगे, आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं 2 सेगमेंट्स में, जेंट्स एंड लेडीज़ और बॉयज़ और गर्ल्स, और दोनों को अलग अलग तरह का मार्केटिंग मिक्स से आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करते हैं सेगमेंटेशन, आप देख सकते हैं। नो सिंगल प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑल कस्टमर्स। एक प्रोडक्ट सारे ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, बिकॉज सबकी ज़रूरतें कैसी हैं, अलग अलग है। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा हुआ है, कंपनीज मस्ट कंसीडर इंडिविजुअल फीचर्स, बेनिफिट्स sought and the individual characteristics of the customers, because needs are different, so companies have to see the different characteristics of the consumers. जितने ज़्यादा सेगमेंट में आप जाएंगे, that going to more segments will be more profitable for you, and even you can use the resources of your company effectively when you are dealing with different segments. This will also help you to take care of the business cycles. Sometimes in a particular product demand is low, so product of a different product, a product of a different need may help you in that particular time. तो उसके लिए भी अच्छा है। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। सो देयर आर 4 important basis of segmentation: demographic, psychographic, uses variable and geographic. शुरुआत करते हैं with geographic. Geographic is related to the geographic locations of the customers. So you can design a product for a particular geographic location only. Okay, for example, for cooler places, you can design a specific kind of woolen garments. Okay, next is this is the simplest form. Generally, companies start their business in a particular geographical area, then they move further to the different areas. This will help the companies for planning the rollout of the products, initially in a smaller area, then to the larger area. This will also help to match the available resources with the market entry strategies. तो आप डिसाइड करते हैं हम किस जियोग्राफिकल एरियाज़ में जाएंगे, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटीज़। तो जैसा इसमें आपने देखा, कंपनीज स्टार्ट करती हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया से, और फिर धीरे धीरे दे ग्रेजुअली मूव टू द होल कंट्री और द वर्ल्ड. देन विल गो फॉर द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. दिस इज बेस्ड अपॉन द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कुछ इसमें लिखा हुआ है. एज है, जेंडर है, फैमिली साइज है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन है, रिलीजन है, रेस है, जनरेशन है, नेशनलिटी है. एज के बेसिस पे अगेन आप यू आर मैन्युफैक्चरिंग clothes, so you can create clothes for children, you can create clothes for teenagers, you can create clothes for adults, you can create clothes for elderly people. Gender, male, female, you can see TVS scooty, that is position, उसका सेगमेंटेशन किस आधार पे किया गया है, मेल और फीमेल के लिए. तो मोस्टली TVS स्कूटी कौन परचेज करते हैं, दैट इज़ परचेज्ड बाय द वुमेन और फीमेल. बट एक्टिवा इज पोजीशन फॉर कॉमन बोथ मेल एंड फीमेल. तो उसका सेगमेंटेशन एक कॉमन पर्पस लेके किया गया है, नॉट बेस्ड अपॉन द एनी स्पेसिफिक जेंडर. Okay, so there are a lot of examples of this. Another is psychographic, based upon the social class, lifestyle and personality. Lower class का है, middle class का है, higher class का है, depends. On the basis of this, you create the psychographic. This mainly touches to your mental status. So there are different types of lifestyle. There are different types of personalities like compulsive, outgoing, authoritarian, ambitious, self-confident, etc. There are different types of lifestyle, like you pursue certain hobbies, you are having certain TV viewing habits, you are involved in certain different social activities, you are having certain different kinds of vacational preferences. So based upon this, you can create the
segmentation of your product. And finally the use is variable. occasions, किस ओकेज़न पे आपको यूज़ करना है? रेगुलर ओकेज़न, स्पेशल ओकेज़न। शादी के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान्यवर और मोहे का नाम आपने सुना होगा, स्पेशल ओकेज़न प्रोडक्ट है। बेनिफिट्स, क्वालिटी, सर्विस, इकोनॉमी, स्पीड। यूज़र स्टेटस, फर्स्ट टाइम यूज़र्स अलग तरह का सेगमेंट है, रेगुलर यूज़र्स अलग तरह का सेगमेंट है। टेलीकम्युनिकेशन में आप जनरली देखते हैं फर्स्ट टाइम यूज़र्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेगुलर को नहीं मिलते। इट इज़ गिवन टू बोथ। सो लॉयल्टी स्टेटस, एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, बायर रेडीनेस स्टेज, अनअवेयर, अवेयर, इन्फॉर्म्ड, इंटरेस्टेड, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये सब आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद करते हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स. So it is very important for you to identify the basis of segmentation. Once you know on what basis you have to divide your product, then you can easily segment the market and create the respective marketing strategies. Now, talking about the basis, so there is no single way of segmenting the consumer is perfect. Demographics easy है, but it is difficult to predict the behavior. Attitude, contribution, so there are lot many bases. Contribution tells you who matters but can only be measured by existing customers and don't explain the motivation. Behavior, easy to gather but changes quickly. Attitude is hardest to measure, so there is no single way to segment the consumer. So what companies do, they prefer multiple methods. They use many variables to segment. So you can see an example. There is a company ABC Limited, corporate basis. Division, they are dealing in two divisions, tool and electronics. Territory basis, geographic segmentation हो गया, नॉर्थ टेरिटरी, साउथ टेरिटरी. मार्केट के बेसिस पे सेगमेंटेशन हो गया, होम कंप्यूटर्स में जाएंगे, नीड्स के बेसिस पे कैलकुलेटर में जाएंगे. प्रोडक्ट किस तरह का होगा, कैलकुलेटर भी बिजनेस होगा, साइंटिफिक होगा. कस्टमर कैसे होंगे, होलसेल वाले होंगे, रिटेलर होंगे. रिटेलर होंगे तो लार्ज होंगे, स्मॉल होंगे. तो ये सारी चीज़ें अभी हमने पिछली स्लाइड्स में जो बेसिस देखे हैं, वो बेसिस आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेसिस, जो बेसिस आपने वहाँ देखे, उनका यूज़ प्रैक्टिकली यहाँ पर किया गया है. और आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर जियोग्राफिक बेसिस पे 4 जगह किया जा सकता है. साइज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं. नेचर ऑफ कंज्यूमर हाउस होल्ड हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है. नाउ अब हम ये करते कैसे हैं, विल मूव फर्दर. द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन. सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई करंट एंड पोटेंशियल वांट्स दैट एग्जिस्ट विद इन द मार्केट. सबसे पहले आप ये देखें कि बाज़ार में ज़रूरत किस चीज़ की है, कौन कौन सी ज़रूरत है, कौन कौन सी वांट्स हैं, कस्टमर की क्या क्या नीड्स हैं जो कि अनफुलफिल्ड हैं. आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश अमंग द सेगमेंट. अब उसमें देखिए कि जो डिफरेंट नीड्स हैं वो किन कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण वो एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं. जैसे कि आपने जो ऊपर पिछली स्लाइड्स में देखे थे, डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन. तो वो बेसिस आपको देखना है कि जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप एक सेगमेंट को दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. जैसे कि आप देखिए एनर्जी में आज वंस सोलर एनर्जी वाज नॉट अ प्रॉफिटेबल सेगमेंट, बट नाउ सोलर एनर्जी इज़ एन अपकमिंग सेगमेंट. यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज इस बिज़नेस में एंटर हुई हैं. तो आपको ये देखना है, डिटरमाइन द साइज़ ऑफ द सेगमेंट एंड हाउ वेल दे आर बीइंग सेटिस्फाइड. तो आपको ये देखना है कि सेगमेंट की साइज़ कितनी है और उसको हम कितनी अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं. वंस यू डू, जब आप इतना कर लेंगे तो आपकी जो प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस you can segment the market. Now some important criterias for market segmentation. So segment must respond differently to different marketing mix, elements and programs. अब segment कैसा होना चाहिए, सबसे पहले measurable होना चाहिए.
आप उसको मेज़र कर सकें इन टर्म्स ऑफ साइज़, परचेजिंग पावर, प्रोफाइल्स, ये सारी चीज़ें आप मेज़र कर सको, क्वांटिफिएबल टर्म्स में हो, क्वांटिफाई कर सको, नंबर्स में ले सको, देन इट शुड बी एक्सेसिबल। आपने कोई सेगमेंट में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका ग्राहक बहुत अंटार्कटिका पर रहता है, वहाँ आप क्या प्रोडक्ट भेज पाएंगे? डिफ़िकल्ट। सो आपको देखना है कि वो आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, सस्टेनेबल, लंबे समय तक चले, ऐसा सेगमेंट आप चूज़ ना करें जो कि थोड़े ही समय में उस सेगमेंट बिजनेस जो है वहाँ पे लूज़ करें आप। और फाइनली आप ये देखिए, एक्शनेबल मीन्स आपके जो रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को के बेसिस पे आप उस सेगमेंट में बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। सो दीज आर 4 मेजर क्राइटेरियाज फॉर इफेक्टिव मार्केट segmentation. Now we comes to the evaluation of market segmentation. So we can evaluate the segment on the basis of its size and growth, कितना बड़ा है और उसमें growth prospects क्या है, वो कितना attractive है, and finally it is meeting with the company's objectives and resources. So friends, here with this we take a pause and सेगमेंटेशन में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे पॉइंट्स। विल रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, आप इसको देखिए, इसको रिवाइज कीजिए और विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर विथ टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग in next videos. So thank you very much, thanks for watching.